Hello everyone, this is Sachin Kumar and I welcome you all in my YouTube channel Excellence Academy. So today we will carry on trigonometry for class 10th and today we will read about complementary angles. So let's start this video. So there are some formulas and these are sine of angle 90 degree minus theta equals to cos theta. Cos of angle 90 degree minus theta equals to sine theta. Tan of angle 90 degree minus theta equals to cot theta. Cot of angle 90 degree minus theta equals to tan theta. Sec of 90 degree minus theta equals to cosec theta. And cosec of angle 90 degree minus theta is equals to sec theta. These are called complementary angles of each other. Complementary angle of sine is cos, cos is sine, and similarly there are complementary of all 6 trigonometric ratios. Now we will solve some question based on this topic. So first of all we have to evaluate this question. Cos of 53 degree divided by sine of 37 degree. तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कॉस को साइन में चेंज कर दें तो भी साइन को कॉस में चेंज कर दें, दोनों में वैल्यू सेम आएगा. सो वी आर कन्वर्टिंग कॉस 53 डिग्री इनटू साइन 37. सो लेट्स सी हाउ विल कन्वर्ट दिस. सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. cos 90 degree minus 37 is equals to cos 53 and we shall divide it by sin 37 degree. So it will be cos 90 minus theta is sin theta. It will be sin 37 degree divided by sin 37 degree. So its value will be 1. Similar way we will solve this question. First of all we will see a number. We have to prove that sin 43 into cos 47 degree plus cos 43 degree into sin 47 equals to 1. So let's see. So if we convert this into cos and this cos into sin, we will prove this question. We will solve the LHS part. LHS there is sin 43 degree into cos 47 degree plus cos 43 degree into sin 47 degree. So we can write it in this form. Sin 90 minus 47 into cos 47 plus cos 90 degree minus 47 into sin 47. So sin 90 minus theta is cos theta. Cos 47 into cos 47 plus cos 90 minus theta is sin theta. Sin 47 into sin 47. So it will be cos square 47 degree plus sin square 47 degree and its value is 1 because sin square theta plus cos square theta is 1. So similarly we will solve this question also. B number, LHS part. It is tan 48 degree into tan of angle 23 degree into tan 48 degree into tan 67 degree. I think it is 42. It is 42. So we will first of all we make pair here. Tan of angle 48 degree and tan 42. And another pair is tan of angle 23 degree and tan of angle 67. So अगर हम लोग इसको कॉट में बदल दें किसी भी टर्म को tan 48 and this tan we can write tan 90 degree minus 48. Tan 90 degree minus 48 and this tan we can write tan of angle 90 degree minus 67 degree. Tan 90 minus 67 23 degree आएगा into tan of 67 degree. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 48 डिग्री. tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा. तो थीटा यहाँ पर क्या है 48 डिग्री तो cot 48 हो गया. उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा तो cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री. तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1. tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. तो here tan 48 into cot 48 its value will be 1 into cot 67 into tan 67 its value will be also 1. So 1 into 1 equals to 1 equals to RHS.
So in this way we can solve this type of problems based on this complementary angle. Now we will solve some more questions based on this topic. So now we will see some more questions based on this topic. So we have to evaluate sin square 65 plus sin square 25. So let's solve a number. Sin square 65 degree plus sin square 25 degree. Sin square 65 degree plus sin square 25 degree. So we will solve this question. So we can write this sin square. So there is one property that sin square theta is equals to sin theta whole square. sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा का होल स्क्वायर के बराबर होता है. इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 25 का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर sin स्क्वायर 25 डिग्री. इसको इस तरह से लिख सकते हैं. sin 90 माइनस 25 क्या होगा? 65 डिग्री और होल स्क्वायर. इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं. तो इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा? sin 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा. सो इट विल बी देयर इज स्क्वायर, सो cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin square 25 degree and its value will be 1 because we know that there is an identity sin square theta plus cos square theta is 1. So this will be the answer of this problem. Now we will see some problem number B. Here we have to evaluate this. So let's solve this question. 2 sin square 63 degree plus 1 plus 2 sin square 27 degree divided by 3 cos square 17 degree minus 2 plus 3 cos square 73 degree. तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये वो दोनों को पेयरिंग में रखते हैं और 2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी कॉमन 3 हो जाएगा, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री एंड माइनस 2. अब एक काम करते हैं कि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में. cos 90 माइनस ये लिख सकते हैं cos साइन 63 लाना है तो साइन 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3. अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2. इस तरह से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. सो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा. तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस cos स्क्वायर 27 डिग्री cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3. इट विल बी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2. अब हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई थ्राइस इंटू 1 माइनस 2. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्वाइस प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2. सो इट्स आंसर विल बी 3 बाई 1, दैट इज इट्स आंसर विल बी 3. तो इस तरह से हम लोग इवेलुएट करेंगे. अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्या गिवन है? साइन ऑफ 3a इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल a माइनस 10 डिग्री. यहाँ पर a क्या है? एक्यूट एंगल है. तो इसको लिखते हैं साइन ऑफ 3a इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल a माइनस 10 डिग्री, जहाँ पर a एक्यूट एंगल है. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 3a को cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा. ये वाला जैसे का वैसे ही है, बस इसको क्या लिख दिए? cos 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या 3 है. तो दोनों साइड अगर कंपेयरिंग करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 10 डिग्री. अब a वाले को एक साइड लेके आते हैं, ट्रांसपोज करते हैं और दूसरा जो
कांस्टेंट एंगल है उसको एक साइड ट्रांसपोज करते हैं। सो यहाँ पर 4 ऑफ एंगल ए हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू 100 डिग्री अपॉन 4। सो कट किया जाएगा 25 डिग्री। दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू कितना है 25 डिग्री, और ये क्या है एक्यूट एंगल है, मीन्स ए इज लेस देन 90 डिग्री और 25 डिग्री क्या है लेस देन 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्या एक्यूट एंगल। तो इस तरह से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, so that sin of angle b plus c by 2 is equals to cos of angle a by 2। यानी कि एक ट्रायंगल ए बी सी जिसका 3 एंगल ए बी और सी है, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि sin of angle b plus c divided by 2 is equals to cos of angle a divided by 2। so we know that, इसका सोल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं we know that sum of all the 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग एंगल ए को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलेगा b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल a। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। इधर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बाय 2। अब दोनों साइड क्या करते हैं साइन ऑफ एंगल लेते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा साइन ऑफ एंगल b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस a बाई 2। So it will be sin of angle b plus c by 2 is equal to sin 90 minus theta। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या जानते हैं cos थीटा होता है, cos a by 2। सो इस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्सप्रेस दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्रीज। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल दिया हुआ है इसको 0 से 45 डिग्री में लाना है। तो किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन। ए नंबर सॉल्यूशन, यहाँ पर साइन 75 डिग्री प्लस कॉसेक 75 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस 15 इक्वल्स टू 75 प्लस सिमिलरली वी कैन राइट कॉसेक 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 15 डिग्री एंड cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये जो एंगल जो हमारा 75 डिग्री था 75, तो वहाँ पर किसके बीच में आ गया 0 और 45 यानी कि 15 में आ गया। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली हम लोग बी नंबर सोल्यूशन भी करते हैं। क्या है सेक ऑफ एंगल 67 डिग्री प्लस cosec एंगल 58 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉसेक ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 23 डिग्री प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 32 डिग्री। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल था वो 0 और 45 के बीच आ चुका है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फार्मूला भी देखा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। सो अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी देखेंगे जो क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।